echo of his car. Dear brothers and sisters, how are you? मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? I am sure that you are doing well. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे कर रहे हो। I have been praying for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करके आ रहा हूँ। I pray that God should shower His blessings upon you and your family. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग को, आपके परिवार को बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे। Today, generally, we see a lot of Christian believers are suffering so much. आजकल हम देखते हैं कई विश्वासी लोग कई प्रकार का दुख तकलीफ उठा रहे हैं। Some people are suffering through their sickness. कई लोग बीमारी के कारण दुख में हैं। Some people are suffering because of the social calamities and other areas of problems. और कई लोग तो सामाजिक के कई प्रकार का कारण के वो लोग दुख में जीवन बिता रहे हैं। I have been praying for the people, those who are suffering in these days. वो जो लोग इस प्रकार का समस्या में गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ। I don't know whether you are also in the same type of person this morning. मुझे पता नहीं, पर आप लोग में भी अगर इस प्रकार का समस्या में हो करके गुजर रहे हो तो God has given a special word for you. आप लोगों के लिए मैं एक विशेष परमेश्वर की वचन से बोलना चाहता हूँ। It is mentioned in Zechariah chapter 9 verse 12. और वो बातें जकरिया उसकी 9:12 में लिखा गया है। Return to the stronghold, हे आशा की घेरे हुए बंदियों, you prisoners of hope. गढ़ की ओर फिरो। The meaning is, those God's children who are believers of Jesus Christ, even after your affliction, in various ways, now you run into the stronghold. मैं आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में दुगुना सुख दूंगा। Those who are called as believers, they are also suffering. जो कोई विश्वासी बोल के कहते वो लोग भी दुख में गुजर रहे हैं। This morning God says, you have a little faith in your heart. मैं आज की सुबह ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जीवन में कि अल्प विश्वास है। You are suffering so much. इसलिए ये दुख समस्या में गुजर रहे हो। The Lord God says that you need not lose hope. परंतु परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि तुम लोग आशा मत छोड़िए। Return to the stronghold, Jesus Christ. परमेश्वर जो कि हमारा दृढ़ गढ़ है, यीशु मसीह जो दृढ़ गढ़ है उसके पास फिरना है। Your victory is very near. आपका विजय बहुत नजदीक है। Nowadays the children of God and servants of God who are under great affliction and distress. आजकल हम देखते हैं परमेश्वर के लोग कई प्रकार का दुख तकलीफ से जीवन बिता रहे हैं। I have seen a lot of servants of God who are doing ministry. They feel very sad because of the spiritual warfare in their life. मैं कई परमेश्वर का लोगों को देखा हूँ जो लोग सेवा करते हैं, उन लोगों आत्मिक जीवन में कई प्रकार का दुख तकलीफ से गुजरते, खास करके उनकी आत्मिक युद्ध को लेकर के दुख उठा रहे। My dear brother and sister, I want to ask you whether you are also suffering because of the spiritual war happening in your life. मैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या आप लोग भी उस आत्मिक युद्ध के लिए दुख उठा रहे हो क्या? Even though you are suffering so much, you are maintaining the small faith you have. शायद आप लोग कई प्रकार के दुख में गुजर, फिर भी आप लोग के हृदय में जो विश्वास है उसको पकड़ के रखिए। You have not lost your faith fully. आपका आशा को पूरी रीति से छोड़े नहीं है। I can understand that you are in a very bad situation right now. मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग कई दुख में हो करके जीवन बिता रहे हो। The Lord God Jesus Christ wants to speak with you quickly. आज की सुबह यीशु मसीह आपके हृदय में बातें करना चाहता है। Return to the fort of Jesus Christ. यीशु मसीह की उस दृढ़ गढ़ में फिरने के लिए God has prepared a stronghold through His blood. प्रभु यीशु मसीह उसकी लहू के द्वारा एक बड़ा सा गढ़ हमारे लिए तैयार किया है। So the Lord Jesus Christ has made available a stronghold in His blood.
और उस लहू के द्वारा यीशु मसीह जो कि हमारा की दृढ़ गढ़ है, So Jesus Christ is the protector for you. यीशु मसीह जो हमें सुरक्षा देता है, Now you have to return to the fort. उस सुरक्षा के स्थान को हमें लौटना है। Inside the fort, nobody can come inside. जब उस गढ़ में कोई किसी प्रकार का लोग आ नहीं सकता है। This morning I want to ask you, are you carrying a heavy cross in your life? आज के सुबह मैं पूछना चाहता हूं कि आप भी इस प्रकार का दुख तकलीफ का क्रूस को उठा करके जिंदगी बिता रहे हैं? Do you think that your burden is so much? आप लोग सोच रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे की बोझ है बोल के? Now Jesus Christ says, cast all your burden upon me. यीशु मसीह कहता है तुम्हारा हर एक बोझ मेरे ऊपर डाल दीजिए, I will deliver you. मैं तुम्हें एक विश्राम दूंगा। Be strong, my dear brother. मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग बलवंत हो। Dear sister, be strong because Jesus is your friend and God. मेरे प्यारे बहनें, आप सब लोग बलवंत हो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का सुरक्षा का ढाल है। Now throw away all the problems and difficulties and run into the fort of Jesus. जो भी दुख है, तकलीफ है, सारा चीज की उसके ऊपर डाल दे करके उसके पीछे आप लोग हो He जाइए। will fight for you. वो हमारे लिए युद्ध करेगा, He will take care of you. और वो हमें सुरक्षा देगा। When you hear bad news in your life, don't be panic and don't give up. जब हम की दुख की खबर हमारा जीवन में सुनते, उस समय दुखित मत होइए। The Lord Jesus Christ can lift up your head. यीशु Today, मसीह आपका मस्तक को उठाएंगे। Today, are you worried about some people? आज आप लोगों के बारे में सोच करके चिंतित हो? Today, are you worried about some situations to happen? क्या आज की बहुत सारी चीजों को सोच करके आप लोग चिंतित हो? The Lord says that He will lift up your head and He will bless you today. यीशु मसीह कहता है कि वो आप लोग का मस्तक को, सिर को उठाएंगे। So you should prove that you are the child of God. हमें साबित करना है कि हम परमेश्वर का जन हैं बोल के। And believe Jesus Christ for a miracle. यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे बोल के। He will not let you down. वो आप लोग को लज्जित होने के लिए नहीं देंगे। You can fight in the name of Jesus. यीशु मसीह के द्वारा आप लोग को युद्ध को लड़िए। God can bless you enormously today. परमेश्वर आज आप सभी को बहुताई से आशीष देंगे। God bless you. प्रभु आप लोगों को आशीष दे। Let me pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this good morning. प्यारे खुदावन, आज की सुंदर प्रभात के लिए हम धन्यवाद देते Some हैं। of these children who have accepted you as their personal savior are also suffering this morning. कई विश्वासी लोग भी आज के सुबह बहुत सारी समस्या से गुजर रहे। They are not able to carry the cross for which they have been called for. उन लोगों का क्रूस को उठा करके चलने के लिए उन लोगों के पास ताकत नहीं है। I bless them in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को ताकत दीजिए। Lord, I ask you to cover them by your blood. प्रभु आपकी लहू के द्वारा उन लोगों को सुरक्षा Give दीजिए, them protection today. उन लोगों को सुरक्षा दीजिए। Whatever the problem may be, जो कोई समस्या भी हो ना हो, Lord, be with them and bless them in this morning. खुदा आप लोग उनके साथ रहिए और उन लोगों को आशीषित कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।